Hello students of class 3rd. Today we are going to study English first. In this we have to read chapter number 15, The Lazy Brahman, page number 99. So all of you open page number 99 here. Chapter number 15, The Lazy Brahman. In this chapter we shall study that one should follow the traffic rules and be honest. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हर किसी को ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए एंड बी ऑनेस्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द स्टोरी. Once there lived a lazy Brahman named Manmoji Ram. Every day he would set out in the morning with his begging bowl. Some generous neighbors used to take pity on him and give him food. However, there were days when he didn't get anything to eat. On those days, he preferred to starve rather than going out and doing some work. One particular day proved to be very lucky for him. A rich man in a generous mood gave him a pot full of flour. Manmoji Ram couldn't believe his eyes. He thanked the man profusely and ran back home. He hung the pot of flour just above his cot and lay down. He looked at the pot and thought, I wish I were rich, then I wouldn't have to beg for food every day. Soon his imagination began to run wild. He thought, what if the country suddenly struck by a famine? There will be no food. Food will become an expensive commodity. And I needn't worry. My pot has enough flour to last for a very long time. Then suddenly an idea struck him. I should make some money while the famine lasts. I should sell my flour to the needy. Yes, I'll go to the market and announce openly who wants to buy excellent flour. Soon people shall crowd around me. Somebody from the crowd will scream, I will pay you 10 rupees for the flour. Another man will counterbid, I'll pay you 20 rupees. What, 20 rupees? A third man will say, I'll pay 30 rupees for that flour. I'll sell the pot of flour for 30 rupees. With 30 rupees in hand, I will buy 2 goats, one male and one female. I shall feed them grass, fatten them and breed them. My goat will give birth to little kids. I will sell goat's milk to my neighbors. By selling milk, I'll earn money. Then I'll take my goats to the markets to sell them. Looking at my healthy goats, a bystander will offer me 100 rupees. I will give him my goats. With 100 rupees, I can buy a silk dhoti and lots of other things. No, I will not waste my money. Instead, I will buy 2 cows. I will get my cows mated and soon there will be cute little calves. I will sell cow's milk and also make cheese and butter. I will sell cheese, butter and ghee to my neighbors. एक बार एक लेजी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था मनमौजी राम. हर दिन वो सुबह जाता था अपना बेगिंग बाउल लेकर, यानी भीख मांगने वाला कटोरा, प्याला यू कैन से, लेकर वो जाता था. कुछ नेबर्स उस पर दया खाकर उसको कुछ खाने के लिए दे देते थे. लेकिन कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था. तो उन दिनों में वो फिर भूखा ही रह जाता था, लेकिन वो काम करने बाहर नहीं जाता था. वन पर्टिकुलर डे, एक दिन उसके लिए बहुत लकी साबित हुआ. एक अमीर इंसान जिसका मूड बहुत अच्छा था, उसने एक मटका भरकर पॉट फुल ऑफ फ्लोर यानी आटा दे दिया. मनमोजी राम को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर ये देखकर. उसने उस आदमी को थैंक यू बोला और फिर अपने घर चला गया. उसने उस पॉट को अपने कॉट के ऊपर हैंग कर दिया यानी टांग दिया और उसके नीचे सो गया. वो उस पॉट को देखकर सोचने लगा कि काश मैं भी रिच होता तो मुझे ये भीख नहीं मांगना पड़ता हर दिन. और फिर अब उसके ख्याल दिमाग में आने लगे. वो सोचा
कि क्या हो अगर अचानक से कंट्री में फेमाइन आ जाए। फेमाइन यानी कि फूड की शॉर्टेज हो जाए, खाना ना मिले तो, और वहाँ पर फूड ना हो तो फूड विल बिकम एन एक्सपेंसिव कमोडिटी। तब खाना जो है एक एक्सपेंसिव कमोडिटी हो जाएगा, यानी बहुत महंगी चीज़ हो जाएगी, और तब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पास तो एक पॉट भरकर आटा है जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि आई शुड मेक सम मनी वाइल द फेमाइन लास्ट। तब तक मैं कुछ पैसे बना लूँगा, पैसे कमा लूँगा जब तक कि फेमाइन रहेगा। मैं अपना आटा किसी ज़रूरतमंद को बेच दूँगा। हाँ, मैं मार्केट जाऊँगा और वहाँ पर खुले अनाउंस कर दूँगा कि किसको ये आटा चाहिए। तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी और कुछ भीड़ जो है चिल्लाएगी कि मैं इस आटे का आई विल पे यू 10 रुपीज़ फॉर द फ्लोर। मैं इस आटे के लिए तुम्हें 10 रुपये दूँगा। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी बोलेगा कि मैं आपको 20 दूँगा। तभी 20 रुपीज़, उसी में फिर तीसरा बोलेगा कि मैं आपको 30 रुपीज़ दूँगा इस आटे के लिए, और फिर मैं उस आटे का पॉट 30 रुपीज़ में बेच दूँगा। उन 30 रुपीज़ से मैं 2 बकरियाँ खरीदूँगा, एक मेल होगा और एक फीमेल बकरी होगी। आई शैल फीड देम ग्रास। मैं उन्हें ग्रास खिलाऊँगा, उन्हें मोटा करूँगा और फिर उनको ब्रीड करूँगा। माई गोट विल गिव बर्थ टू लिटिल किड्स। फिर मेरी बकरी बच्चों को जन्म देगी और फिर मैं अपनी बकरी का दूध अपने पड़ोसियों में बेचूंगा और फिर दूध से मैं पैसे कमाऊंगा दूध बेचकर। देन आई टेक माई गोट्स टू द मार्केट। फिर मैं अपने बकरियों को मार्केट ले जाऊंगा और वहाँ पर उन्हें बेच दूंगा। मेरी हेल्दी बकरियों को देखकर वहाँ पर जो भी होंगे वो लोग 100 रुपीज़ ऑफर करेंगे। मैं उन्हें वो गोट दे दूंगा और उस 100 रुपीज़ से मैं अपने लिए सिल्क धोती और भी बहुत सारी चीज़ें लूँगा। फिर उसने कहा नहीं, मैं इन पैसों को बर्बाद नहीं करूँगा, मैं इससे 2 गाय लूँगा। आई विल गेट माई काउज मेटेड। और फिर मैं उनकी देखभाल करूँगा और फिर उनके 2 क्यूट काव्स होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। फिर मैं गाय का दूध बेचकर उनसे चीज़ और बटर भी बनाऊँगा और फिर मैं चीज़ और बटर आई विल सेल चीज़ बटर एंड घी टू माई नेबर्स। फिर मैं चीज़ बटर और घी अपने पड़ोसियों को बेचूंगा। Then I shall make sweets out of the milk. I will buy a small shop and sell my sweets and dairy products. Men and women who taste my sweets will come back asking for more. Soon people shall throng my sweet shop. I will make lots of money. With the money I shall buy gold. I will soon become a gold merchant. I will build a big house with beautiful green lawns. There will be a pool in the courtyard filled with lotus flowers. White swans will also grace my pool. Soon I will be a well-known man. My fame will spread far and wide. I'll have rich friends. Then a rich landlord will ask me to marry his beautiful daughter. One look at the beautiful girl and I'll decide to get married. We shall be very happy. Soon a son shall be born to us. I will name him Kush. Later I'll have a daughter. I shall name her Kushali. My kids will be very smart and naughty. They will play pranks and worry the neighbors. Every day I shall hear complaints from the neighbors. One day I will get angry and I shall run after my kids with a stick. I will teach them to be well mannered. I will hit them with her stick. Saying this, he picks up a stick lying next to the pot and hits the pot. Dham dham. The pot comes crashing down. Disturbed by the crashing sound, Manmoji Ram wakes up and looks around. He doesn't see his wife, his kids, his house or his gardens. All he saw was floor and pieces of broken pot lying scattered on the floor. तो फिर उसने ये कहा कि वो गाय खरीदेगा 2 और उसके बाद उसके मिल्क को बेचेगा और उसके मिल्क से चीज़ और बटर भी बनाएगा और उसके बाद वो चीज़ बटर और घी अपने पड़ोसियों को यानी नेबर्स को बेचेगा। देन आई शैल मेक स्वीट्स ऑफ द मिल्क। फिर मैं उन दूध से
मिठाइयाँ भी बनाऊँगा और मैं एक छोटी सी शॉप खरीद लूँगा और फिर एंड सेल माई स्वीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर मैं अपनी मिठाइयाँ और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध वगैरह बेचूँगा, दूध, चीज़, बटर, ये चीज़ें मैं बेचूँगा। मैन एंड वुमेन जो मेरी मिठाइयों को टेस्ट करेंगे वो फिर से मेरे शॉप पर वापस आएंगे। Soon people shall throng my sweet shop. I will make lots of money. तब मैं अब ज़्यादा पैसे कमाने लगूँगा और उन पैसों से मैं गोल्ड खरीदूँगा और उसके बाद मैं एक मर्चेंट यानी व्यापारी हो जाऊँगा, और गोल्ड मर्चेंट यानी सोने का व्यापारी। फिर मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊँगा, उसमें ग्रीन खूबसूरत सा ग्रीन लॉन होगा, एक पूल होगा, एक कोर्टयार्ड होगा जिसमें लोटस फ्लावर्स लगे होंगे और मेरे पूल में वाइट स्वॉन्स भी होंगी। Soon I will be a well known man. जल्दी ही मैं एक बहुत ही बड़ा इंसान बन जाऊंगा जिसे सब जानेंगे और मेरी पहचान दूर दूर तक होगी। मेरे अमीर दोस्त होंगे। तब एक रिच लैंडलॉर्ड यानी अमीर ज़मींदार मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए बोलेगा। मैं उस लड़की को एक बार देखूंगा और फिर मैं डिसाइड कर लूँगा कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए। फिर हमारी शादी हो जाएगी। फिर एक लड़का होगा जिसका नाम मैं कुश रखूँगा। उसके बाद मेरी एक बेटी होगी जिसका नाम मैं खुशहाली रखूँगा। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट होंगे और साथ में नॉटी भी होंगे। वो पड़ोसियों को परेशान भी करेंगे, खेलेंगे और उनको परेशान भी करेंगे। हर दिन मैं उनकी शिकायतें सुनूंगा उन पड़ोसियों से। एक दिन मैं गुस्सा होकर उनके पीछे भागूंगा डंडा लेकर, छड़ी लेकर मारने के लिए, और मैं उन्हें ये सिखाऊंगा कि एक वेल मैनर्ड कैसे होते हैं। बताऊंगा कि हमें वेल मैनर्ड होना चाहिए। आई विल हिट देम विद अ स्टिक। मैं उन्हें उस छड़ी से मारूंगा। और ये कहते हुए उसके पॉट के पास में एक छड़ी पड़ी हुई थी, उसने उसको उठाया और पॉट पर मार दिया, धम धम, और वो पॉट टूटकर नीचे गिर गया। और इस क्रैशिंग की आवाज़ से डिस्टर्ब होकर मनमौजी राम उठ गया और अपने चारों तरफ देखने लगा। He doesn't see his wife. ना तो उसको उसकी बीवी दिखी, ना ही बच्चे दिखे, ना ही घर और ना ही उसका गार्डन। बस उसको दिखा ये कि उसका पॉट जो है वो टूट गया है और सारा आटा वहाँ पर पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ। तो इन दिस वे मनमौजी राम का ख्वाब टूट गया और उसने जो भी ख्वाब देखे थे, ये सारा जो भी चीज़ें हो रही थी, ये सब वो इमेजिन कर रहा था यानी सोच रहा था। बस उसको एक आटा, एक पॉट भरकर आटा मिल गया था, उससे उसने ये सारी चीज़ें सोच ली थी कि वो कैसे बड़ा आदमी बनेगा, क्या करेगा, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि वो पॉट टूट गया और उसका साथ में उसका ख्वाब भी टूट गया। ठीक है, तो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीट, द लेजी ब्राह्मण। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. Read it once again and try to understand it by your own. Here the word meanings are given. You have to learn this word meaning also. Once I am reading it for you. Generous, open-hearted, preferred, liked better. Starved, having nothing to eat, go hungry. Imagination, ability to form pictures in mind. Famine, food shortage. Expensive, costly. Commodity, article of trade. Scream, shout. Friends, practical jokes. Scattered, spread out. Okay, now the exercises. These exercises we will do in our next video.